Hello students, welcome to lecture number 2 of chemical kinetics. So let us recap from where we left. Yesterday I told you about average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. So we will be continuing with it. Before I discuss how to calculate the average rate of reaction or instantaneous rate of a reaction, I would like to tell you one thing. Till now we were considering the reactions. In solutions we were taking the concentration. In case you are having gaseous reactions, if your reactions are gaseous in nature, then you have to remember that concentration term is to be replaced with pressure of the gas. concentration term को हम pressure of gas से replace करेंगे. आप जानते हैं कि PV is equal to nRT. So P is equal to NV by RT, that is CRT. So at constant temperature, pressure of a gas is directly proportional to concentration. So in case of gaseous reactions, instead of taking concentration, we will be going with the pressure. हम pressure को use करेंगे वहाँ पे अगर हमारे पास gaseous reaction हो. So now the next thing is how we can determine the rate of various reactions. हमें किसी reaction का rate निकालना हो तो हम रिएक्शन के रेट को कैसे निकालेंगे. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द ग्राफिकल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट. फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन. In this method, what we do is we follow the progress of reaction. हमारी रिएक्शन कैसे हो रही है उसकी प्रोग्रेस को फॉलो करते हैं. What is meant by following the progress of the reaction? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को फॉलो करने का मतलब है कि हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिफरेंट टाइम पे डिटरमाइन कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं एट डिफरेंट टाइम ऑफ रिएक्शन. एंड हाउ वी विल बी डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम. देयर आर टू मेथड्स. मान लीजिए हमारे पास किसी कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं between the reactants A and B. We wish to know about the concentration of any of the reactant. Then what we will do, we will take out a small amount of the reaction mixture with the help of a pipette, a amount of approximately solution of 2 ml, 5 ml, maximum 4-5 ml, and then we will be adding ice to this. Why will be adding ice to this? To arrest the reaction. रिएक्शन की प्रोग्रेस को अरेस्ट करेंगे और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे किसी सुटेबल सॉल्यूशन के साथ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट. दिस इज ए कन्वेंशनल मेथड एंड इट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड. समटाइम व्हाट हैपन्स इज वी कैन आल्सो डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट simply by observing some property of the reactant or product which depend upon the concentration. For example, I would like to mention here a reaction between hydrogen and iodine to give 2HI. In this reaction mixture,
your hydrogen is colorless, iodine is violet in color, and hydrogen iodide is also colorless. So this reaction mixture will be having the violet color. इस रिएक्शन मिक्सचर का कलर क्या होगा? वायलेट कलर होगा. एंड व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दैट वायलेट कलर? Intensity of that violet color will depend upon the amount of the iodine present in the reaction mixture. So your one of the measurable property, intensity of color, it is proportional to concentration of iodine. So without stopping the reaction, आपको रिएक्शन को रोकने की जरूरत ही नहीं है. आप क्या करें? आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करें. कैसे डिटरमाइन करें? बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ वायलेट कलर. इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है वो फोटोमीटर. अगर हम इस रिएक्शन को किसी फोटोमीटर के सेल में करवाएंगे तो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे हम आयोडीन की कंसंट्रेशन नोट डाउन कर सकते हैं सिंपली बाय डिनोटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर. तो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई, हमने कलर नोट कर लिया. Sometime what happens is there is a change in volume during the reaction. Sometime in case of gaseous reactions there is change in pressure. So you can measure these properties directly. So by any of the two methods, either by pipetting out small amount of the solution and then arresting the reaction and then titrating it with some suitable reagent, we can determine the concentration, or indirectly we can measure the intensity, concentration of the reactant or product by means of measuring some property which is directly proportional to the concentration of that reactant. Once we determine, एक बार अगर हमें किसी reactant या product की concentration पता लग गई at different interval of time, that it is very simple to note down or to determine or to calculate the rate, which is average rate as well as the instantaneous rate of that reaction. After determining the rate, what we will do, after determining the concentration of a reactant or product at different interval of time, what we will do, we will be plotting a curve between time taken along x-axis and the concentration taken along the y-axis. If we are plotting the curve for a reactant, then your curve will be something like this. इस तरह की कर्व आएगी आपके पास. अब अगर हमने इस रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है, then we will be picking up two different times, T1 and T2. दो टाइम हमने पिक कर लिए और इन टाइम से हमने कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया. इसी तरीके से यहां पे टाइम T2 पे डाल दिया और जहां पे ये दोनों टच करते हैं इस कर्व को, वहां से y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाला. सो दिस इज योर डेल्टा T, which will be equal to T2 minus T1, and this is your delta C, change in concentration. अगर ये C1 है और ये C2 है तो ये C2 minus C1 हो जाएगी. So what will be your average rate? Average rate will become equal to minus delta C by delta T. मैंने ये माइनस साइन क्यों लगाया है ये मैंने आपको कल बता दिया था, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और रिएक्शन का जो रेट हमेशा पॉजिटिव होता है. तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. ये हमने कल भी बताया था. तो ये हमारा एवरेज रेट आ गया. पर एवरेज रेट किसी भी रिएक्शन के रेट को बताने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है. रीज़न बीइंग, क्यों नहीं है ये अच्छा तरीका, कि अगर हम डिफरेंट इंटरवल लेंगे तो एक गिवन इंटरवल में तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा,
बट अगर हम इंटरवल को छोटा या बड़ा करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज, वो बदलेगा। अगर हम इस इंटरवल को बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर विल बी लार्ज टाइम, सो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विल बी लार्ज, सो जनरली देयर विल बी some increase in the rate. So this is not a good method, good way to express the rate of a reaction. So what we require is, we require the instantaneous rate. अगर हमें instantaneous rate निकालना है किसी रिएक्शन का, तो इसी तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। जिस किसी टाइम पे हमें रेट चाहिए, मान लीजिए दिस इज द टाइम दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइम टी, मान लीजिए हमने यहां से इसको डाला और ये हमारा टाइम टी है, हम इस टाइम टी पे किसी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना चाह रहे हैं, देन व्हाट वी विल डू, वी विल बी सिंपली ड्रॉइंग ए टेंजेंट। हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व के ऊपर और इस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा दैट विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट, इट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब स्लोप का आपको पता ही है, इफ दिस tangent is making an angle theta, this is your O, this is A and this is the point B, तो आपको पता है कि slope of a tangent, slope is equal to tan theta। हमारा slope किसके बराबर हो जाएगा, tangent theta। so by measuring OA and OB, tangent आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। So you will be determining the slope and that slope will give you the instantaneous rate of the reaction। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्लोप हमने इस एंगल को थीटा मान के निकाला, तो ये हमारा स्लोप आएगा पॉजिटिव। तो आप सीधा सीधा अगर इस एंगल से मेजरमेंट कर रहे हैं स्लोप की, तब तो आपका सीधा सीधा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। लेकिन वास्तव में अगर आप देखें कि ये जो टेंजेंट है वो एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल तो वो ये बना रहा है। अगर हम इस एंगल को लें, अगर हम इस एंगल को थीटा मानेंगे तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। इन दैट केस योर स्लोप विल बिकम नेगेटिव। उस केस के अंदर आपका स्लोप क्या हो जाएगा, इफ वी टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, देन योर इंटीरियर एंगल, दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। इन दैट केस इट विल बी 180 माइनस थीटा। हमने इसको थीटा मान के कैलकुलेट किया, तो आपको कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगाना। अगर ये एक्चुअल एंगल जो बना रही है लाइन, इसको हम थीटा मानेंगे तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, एंड इन दैट केस योर रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू माइनस स्लोप। इन दैट केस इट विल बी माइनस स्लोप। if we consider angle as 180 minus theta, then it will be minus slope. This angle is theta, this is 180 minus theta. In that case slope will be negative, and in that case rate will be equal to minus slope. और अगर आप इसको थीटा मान के सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, देन यू हैव नॉट टू चेंज योर साइन। आपको स्लोप के साथ फिर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हम इफ़ वी गो बाय द कन्वेंशनल वे
ऑफ मैथमेटिक्स, तो हमारा एंगल जो लाइन ने बनाया, टेंजेंट ने बनाया, वो ये है। अगर हम इस एंगल को मानेंगे थीटा तो ये 180 माइनस थीटा माना जाएगा। Then in that case your slope will be negative, because that in that case slope will be equal to tangent 180 minus theta हो जाएगा। In that case it will be 180 minus theta, so it will be negative slope, so in that case you have to put a negative sign to get the rate of a reaction। so ये आपने ध्यान रखना है इसके अंदर। ये तो है आपकी रिएक्टेंट के केस में। ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर हम यही रेट कैलकुलेट करें by using a graph between concentration of product and time। अब मैं आपको दूसरी तरफ से चले, इधर हमने टाइम, इधर हमारी कंसंट्रेशन, एंड नाउ वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या थी? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा योर कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। ये प्रोडक्ट्स के केस में आएगी। अब अगर मान लीजिए हमें इस पॉइंट पे टाइम t पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस पे टेंजेंट डालेंगे, और ये जो टेंजेंट है, अब जो है ये एंगल क्या है? थीटा। अब अगर हम निकालेंगे स्लोप तो वो पॉजिटिव आएगा। और प्रोडक्ट के केस में हमने बताया भी था कि स्लोप जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है तो उस केस के अंदर प्लस साइन पुट किया था हमने, तो इसके अंदर सीधा सीधा आपका रेट किसके बराबर आ जाएगा? स्लोप के बराबर। बिकॉज हेयर द एंगल वी हैव टू कंसिडर दिस एंगल, सो this is theta, so slope will be positive, so rate will also be positive in case of product। तो जब आप ग्राफिकल मेथड से रेट डिटरमाइन करेंगे किसी रिएक्शन का, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, देन योर रेट विल बी इक्वल टू माइनस स्लोप, माइनस नेगेटिव ऑफ द स्लोप। इफ यू आर कंसिडरिंग द angle as theta, then interior angle to determine the tangent will be 180 minus theta, and slope will rate will be equal to minus theta। and in case of products के केस में rate will be equal to slope, because in that case your slope will be positive, tangent theta सीधा सीधा आएगा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड है किसी भी रिएक्शन का रेट को निकालने का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां पे डिस्कस करनी है वो है, अब तक हमने जो भी रिएक्शंस ली उन सभी रिएक्शंस के अंदर जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे हमारे रिएक्टेंट्स के, हमने रिएक्शंस कंसीडर की हैं A + B टू गिव C + D। इस टाइप की रिएक्शन कंसीडर की हैं जिनमें स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर 1। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब आपके किस रेट के ऊपर A डिसअपियर हो रहा है, किस रेट के ऊपर B डिसअपियर हो रहा है, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाता है, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनका क्या है? 1 है। तो जितने रेट पे आपका A डिसअपियर हुआ, मान लीजिए 2 मोल आपके A के डिसअपियर हो गए 5 मिनट में, तो रेट सीधा सीधा 2/5। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम। इसी तरीके से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम। हाउएवर we also encounter the reactions in which the stoichiometric coefficients of reactants and product may not be same, they may be different, वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2O5, इसकी डीकम्पोजिशन कंसीडर करें। दिस इज द रिएक्शन।
2N2O5 decompose to give 4NO2 plus O2. Now we are observing that the stoichiometric coefficients of reactants and product are same. तो इसके अंदर अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 लें, then it is equal to half the rate of disappearance, sorry, rate of appearance of NO2, क्योंकि जब इसके 2 मोल डिसअपियर हुए तो इसके कितने बने, 4 बने, तो इसके रेट ऑफ अपीयरेंस से इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या हो गया, हाफ, एंड इट इज इक्वल टू इसके 2 मोल तो इसका 1 मोल, इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस, ट्वाइस द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, appearance of oxygen, sorry not A, ऑक्सीजन दुगना है। अब अगर हम इसमें रेट निकालें तो आपकी रिएक्शन के 3 अलग अलग रेट आएंगे। इसके अगर 2 मोल डिसअपियर हुए 5 मिनट में तो रेट हो गया 0.4, लेकिन उतने ही टाइम में इसके कितने बने, 4 मोल, तो रेट कितना हो गया, 0.8, और इसका कितना बना, 1 मोल, तो रेट कितना हो गया, 0.2। तो 3 अलग अलग रेट आएंगे इन दैट केस। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 से देखेंगे, NO2 से देखेंगे और O2 से, तो वी विल बी हैविंग 3 डिफरेंट रेट्स, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव ए कार एट द 3 डिफरेंट स्पीड्स एट सेम टाइम। एक ही वक्त पे एक कार को अलग अलग 3 स्पीड पे नहीं चला सकते आप। तो आपकी रिएक्शन क्या है, एक ही है, सो इट मस्ट हैव ए सिंगल रेट। So in these cases when the stoichiometric coefficients of these reactants and products are different, then we write the rate as equal to -1/2 delta N2O5 divided by delta T। stoichiometric coefficient से डिवाइड कर देंगे, it is equal to +1/4 delta NO2 divided by delta T, and it will be equal to plus delta O2 by delta T। तो ये आपके जब डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो किसी रिएक्शन में, तो आपके रेट जो हैं इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट divided by the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। balanced chemical equation में जो उसका stoichiometric coefficient है उससे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। so this is how we can determine the instantaneous rate and average rate of reaction। now the next thing which we have to discuss in this chapter is, next article of this chapter is factors affecting rate of reaction। factors affecting rate of reaction। किसी रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। Rate of a chemical reaction is affected by a number of factors। various factors which affects rate of a reaction are, कौन कौन से फैक्टर हैं। The first one is concentration। The first factor which affect the rate of reaction is concentration। Second one is your temperature।
Rate of reaction is also affected by the temperature of the reaction. It is also affected by presence of radiations. It is also affected by presence of catalyst. And fifth one, nature of reactant. Nature of reactants. तो ये 5 फैक्टर्स हैं. नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी करते हैं. तो कुछ बुक्स के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं दे आर 6. इसके 2 हिस्से कर सकते हैं हम. नेचर ऑफ रिएक्टेंट में केमिकल नेचर एंड second one is surface area. So first we will be discussing, I think we should go by the 5th factor first, क्योंकि it is all about the reactants. किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम. कुछ बुक्स के अंदर कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया हुआ है, कुछ में नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स से स्टार्ट किया हुआ है. So I think we should start with the nature of reactants. If we talk about the nature of reactants, तो अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो हम 2 रिएक्शन देख सकते हैं. हमारी एक रिएक्शन है 2NO गैस प्लस O2 गैस to give you 2NO2 गैस. एक ये रिएक्शन है. दिस रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट. बहुत तेज है ये रिएक्शन. दूसरी रिएक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 टू गिव यू 2 CO2 गैस. दिस रिएक्शन इज क्वाइट स्लो. दिस इज, आई एम डिस्कसिंग द केमिकल नेचर. तो इन रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों रिएक्शंस में वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज सेम. दोनों में से एक रिएक्टेंट सेम है, दैट इज ऑक्सीजन. इट मीन्स द रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दीज 2 रिएक्टेंट्स, नाइट्रोजन NO एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इनकी नेचर पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ देयर केमिकल नेचर. द सेकेंड वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स टू ए वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट. आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं. चारकोल, कच्चा कोयला मिलता बाजार में, उसका एक लम्प ले लीजिए. उस लंप को, टुकड़े को, पीस को जलाइए आप. मान लीजिए ये एक लंप है चारकोल का, इसको जला दीजिए. बिल्कुल इसी साइज का, इसी वेट का आप चारकोल का टुकड़ा लीजिए दूसरा, और उसको पाउडर कर दीजिए. तोड़ दीजिए उसको, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पाउडर कर दीजिए और दोनों को एक साथ जलाइए एट द सेम टाइम. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक चारकोल का टुकड़ा लें, उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लें. एक हिस्से को पीस के पाउडर बना दें और फिर दोनों को एक साथ जलाएं. एंड देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. क्या होता है आप देखेंगे कि जो चारकोल का टुकड़ा हमने पाउडर करके जलाया था, दैट इज बर्निंग एट ए वेरी फास्ट स्पीड कंपेयर टू द वन which is in the form of lumps. So
what has happened when we powdered the charcoal piece? The surface area of charcoal has increased, and you are observing that with the increase in surface area, rate of reaction has also increased. So this is about the chemical nature of the physical nature of the reactants. तो दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर पे. कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हम जो है वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें. ब्रीफली अभी सिर्फ बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. कंसंट्रेशन, the rate of a concentration, rate of reaction depends upon concentration of reactants to a very great extent. You have an idea about it in your previous class also. जैसे जैसे हमारी कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है, मान लीजिए A प्लस B ये हमारी रिएक्शन है टू गिव यू प्रोडक्ट. आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, अमाउंट ऑफ ए और बी, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करता है तो हमारी रिएक्शन का रेट भी स्लो होता चला जाता है. वी हैव रेड अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन इन आवर प्रीवियस क्लास. वी विल बी अगेन डीलिंग विद दिस फैक्टर, कंसंट्रेशन फैक्टर, इन डिटेल in the next lecture. The third factor is temperature. इसमें भी हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही बताना है कि किसी भी रिएक्शन का रेट दैट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर आप रिएक्शन का रेट बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा. इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, योर रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी इंक्रीज्ड. कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. वी आर ब्रीफली डिस्कसिंग ऑल द फैक्टर्स फर्स्ट, then we will be taking them in details. Fourth one is presence of radiation. Presence of radiations. हमारी बहुत सी ऐसी reactions हैं which do not take place in dark. जैसे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आप किसी कंटेनर में मिक्स कीजिए in a dark room, you will see that there is no reaction taking place. कोई रिएक्शन नहीं होती. लेकिन as soon as these two reactants are brought in the light, sunlight, the reaction start taking place. So the presence of radiation is also effect. Fifth one is presence of catalyst. Catalyst जो है वी डिफाइन कैटलिस्ट एज दोज सब्सटेंसेस विच एल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शंस, जो किसी रिएक्शन के रेट को बढ़ा दें. बढ़ा दे या कम कर दे, दोनों को ही कैटलिस्ट बोलते थे. आजकल कैटलिस्ट सिर्फ उसको बोलते हैं जो सिर्फ रेट को बढ़ाता है, जो रेट को घटाता है उसको इनहिबिटर बोल देते हैं. तो कैटलिस्ट भी जो है दैट आल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, और यू कैन से इट स्पीड अप द रिएक्शन. ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है. तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. We will be taking these factors one by one in detail in our third lecture and the subsequent lectures. So for today, I think it is sufficient. Thank you. Thank you very much. Hello everyone. If you found the content helpful, so kindly share this video with your friends. Also, don't forget to like, share and subscribe. Thank you. Happy learning.